Welcome friends to our next part of the rate analysis regarding the various items of work during our civil engineering construction process. Today we will discuss in detail about the rate analysis of the RCC work of cement concrete 1 to 4. Volumetrically it is 1 to 4, one part of the cement, two part of the sand or the fine aggregate, and four parts of the coarse aggregate. That is volumetrically 1 to 4. एक बैग सीमेंट, दो बैग रेती और चार बैग गिट्टी. गिट्टी में फिर से 40 एमएस है तो 40 20 10, 20 एमएस है तो 20 एमएम 10 एमएम. ठीक है. डोंट फॉरगेट these things which I am telling you, or don't overlook these things. These are very important. This is volumetrically. And by strength, this concrete is also called as M15 concrete. Okay, mix 15. 15 gives the compressive strength of the 28 days, 15 Newton per millimeter square or 150 kg per cm square. So for this concrete with RCC work, यानी reinforced cement concrete के लिए 1 to 4 के लिए क्या रेट आएगा एक क्यूबिक मीटर का, वह हम डिस्कस करते हैं. और उसके बाद में और कुछ आइटम्स होंगे तो उसके डिस्कस करते हैं. एंड देन वी विल मूव ऑन टू एक्चुअल रेट एनालिसिस दैट हैज बीन डन टुडे और नाउअडेज इन द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट. दोनों में फर्क क्या है वो देखते हैं. So the concrete regarding the material, again as has been seen, the table is like that. From your left side, the first column is particulars, second is quantity or the numbers, third is the unit, next is the rate of the various part of the rate, that is material, labor, etc. And that rate per means per cubic meter, per quintal, per kg, per labor, per day. And last one is the total cost, which is nothing but rate multiplied by quantity, that is column number 2 multiplied by column number 5. ठीक है. तो पहला हम रेट एनालिसिस में जैसा 1 to 4 का निकाल रहे हैं विथ आरसीसी वर्क, मींस इसमें रीइंफोर्समेंट भी है 1 to 4 में, है ना. एक आध बार रीइंफोर्समेंट का जो पेमेंट रहता है वो सेपरेटली उसका रेट एनालिसिस रहता है. लेकिन हियर द कंक्रीट इज बीइंग इंक्लूडेड विद रीइंफोर्समेंट. then what should be the process, that we will see, because you have to do all these things during your job, during your service. So for material now, as per again this material as per volumetrically, huh? Volumetric batching and the way batching हमने देखा है. So way batching we do adapt as per the concrete mix design. वॉल्यूमेट्रिकली हम जा रहे हैं ओल्ड मेथड जो है उसके हिसाब से रेट एनालिसिस वे बैचिंग से भी निकाल सकते हैं. मटेरियल है जैसे वॉल्यूमेट्रिकली मटेरियल 20 एमएसए का कंक्रीट है. ये एमएसए इज अगेन मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट. ठीक है. 20 एमएसए यानी 20 एमएम मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है. इसका मतलब उसमें एग्रीगेट जो है वो 20 एमएम है, 10 एमएम है और 5 एमएम है. उनके प्रोपोर्शन अगेन जो रहेंगे, that proportion will be for a uniform compacted concrete. थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाइए, नए नहीं है ये सब, हम सीटी में पढ़े हैं. सो द एग्रीगेट 20 mm, इसकी क्वांटिटी है 10 क्यूबिक मीटर के लिए. सो वी आर फाइंडिंग आउट द रेट फॉर 10 क्यूबिक मीटर एंड द टोटल कॉस्ट per 10 cubic meter we will find out, divided by 10 will give you the rate for 1 cubic meter. And because it is difficult to find the quantities and the labor, how much they work for 1 cubic meter, so we find out for the larger quantity and then convert it to the smaller quantity. So the aggregate 20 mm needed for 10 cubic meter is 8.8 cubic meters. The rate of the aggregate that has been taken here, or you can say assumed here, is rupees 1800 per cubic meter. So therefore the cost of the aggregate for 10 cubic meter is 8.8 cubic meter multiplied by 1800, that is 15,840. The last column, cost,
And I will again request you to please follow me as per the columns. मटेरियल में अभी सेकंड इज सीमेंट फॉर 10 cubic meters. The cement is 66 bags required. Okay, therefore that 66 bags, each bag has got the volume of 0.035 cubic meter. One bag, its volume is 35 liters or 0.035 cubic meter. So one bag 0.035 cubic meter, 66 bags is 66 multiplied by 0.035, which is equal to 2.2 cubic meter. Cement 2.2 cubic meter. Its rate in cubic meter per cubic meter is 7,650. That is assumed here. So 2.2 cubic meter is the cement. Its rate is 7650 rupees per cubic meter. So 2.2 multiplied by 7650 is equal to 16,830. This is the cost of the cement required for 10 cubic meter of the concrete. Then the sand, and sand required is half of the stone. 1 to 4 hai. One part is 2.2 part is the cement. So the double the part, that is 4.4 part is the sand, and sand का भी डबल या 4 times of the cement 2.2 का 4 times 8.8 cubic meters is the aggregate. You can see from row number जो मटेरियल में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. So cement 2.2 cubic meter, sand or the fine aggregate is 4.4 cubic meter multiplied by its rate per cubic meter 1500. This is the these are not the today's rate. These are the rates assumed for rate analysis. आज के रेट ज्यादा हो गए. So 4.4 multiplied by 1500, 6.6. Now this the rate or the amount of reinforcement is added steel आरसीसी वर्क का. इसलिए ऐसा एज्यूम किया है कि 1% ऑफ द कंक्रीट है ना, कंक्रीट जो है उसका 1% is cement, is steel. So 1% of 1 cubic meter, 1 cubic meter of the steel is there, whose weight is 7.85 quintal. So 7.85 quintal is the steel required. इसका रेट है 4040 है, 400 per quintal. So the cost of the steel is 34,540. Again 7.85 multiplied by 4,400. Column number 2 multiplied by column number 4 rate. ठीक है. So the amount will be 34,540 of the steel reinforcement. स्टील बांधने के लिए बाइंडिंग वायर भी लगेगी, उसका भी खर्चा हमने ऐड किया. 1.5 kg 1.5 किलो लगेगा 10 क्यूबिक मीटर के लिए, 65 रुपए पर किलो है, तो 97.5. इसके लिए लेबर्स, मिस्त्री, हेड मेसन, जो आधे दिन की उसके मजूरी में वो 10 क्यूबिक मीटर का काम करेगा. हेड मेसन जो है, बड़ा बड़ा मिस्त्री जिसको बोलते हैं, तो वो 0.5 नंबर हमने लिया है. 0.5 मीन्स हाफ ऑफ इट्स रेट. इट्स रेट एट दैट डेज आर 350. आज कम से कम 600-700 रुपए पर डे है. उसके नीचे कुछ मैसन है, मिस्त्री है, 3 नंबर्स. देयर रेट इज 300. अगेन रेट देयर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट. कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 4 is the column number 6, that is the cost. So 0.5 multiplied by 350 is equal to 175 for the head mason. For the regular mason, 3 mason multiplied by 300 is equal to 900. मजदूर जो नीचे में और लगते हैं 12, उसके अंडर और कुछ छोटे मजदूर कमजोर जो रहते हैं, वुमन कुली, लेडी कुली 20, उसका रेट पर डे 200, इसलिए 4000. और फिर और पानी वगैरह के लिए, क्यूरिंग व्यूरिंग के लिए भिस्ती भी लगते हैं पानी की, 6 भिस्तीज 200 है ना. आज के रेट एनालिसिस में शायद अभी हम जो आगे में कंक्रीट का देखेंगे तो उसमें ये भिस्ती पार्ट नहीं है. ये सिर्फ हमें सब जो हम पहले जो मैन्युअली करते थे, आज तो हम आरएमसी यूज करते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट. लेकिन अभी हम हमारे समझने के लिए अभी भिस्ती को भी ऐड करते हैं.
बिस्ती का जो भी चार्जेस है, दैट इज 1200. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दी, उसके बाद में सेंटरिंग और शटरिंग है ना, कंक्रीट के साथ में उसको हम फॉर्मवर्क भी अप्लाई करते हैं, उसमें सेंटरिंग शटरिंग ऑफ द टिम्बर प्लैंक्स है ना, प्लाईवुड या टिम्बर का हम करते हैं, तो लमसम उसका 1500 रुपीज फॉर 10 क्यूबिक मीटर, ऐसा हमने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐड किया 1500. इसके लिए सेंटरिंग शटरिंग बैठाने के लिए हमें एक सुतार भी लगेगा, कारपेंटर जो जो फिक्स करता है, तो 10 कारपेंटर्स फॉर 10 क्यूबिक मीटर, 280 रुपीज पर डे. सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 280, 2800. अगेन ये कारपेंटर के नीचे भी मजदूर बेलदार वगैरह लगेंगे, वो भी 10 लोग लगेंगे, उनके भी रेट, और फॉर 10 पीपल इट इज 2200. सम सन्ड्रीज लाइक टूल्स एंड प्लांट्स, कुछ खिले लगते हैं है ना, नेल्स एक्सेट्रा, हथौड़ी है, चन्नी है, ऑल दोस टूल्स एंड प्लांट्स फॉर द कारपेंटर, बार बाइंडर, ठीक है, तो उसके 290. बेंडिंग, और इसके लिए जो भी बेंडिंग बाइंडिंग ऑफ द स्टील बार, लोहा बेंड करना तोड़ना, उसके लिए भी कुछ लोहार जिसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथ या बार बाइंडर, उसके भी 8 लोग लगेंगे, 280 रुपए, उससे 2240. सन्ड्रीज और उसके ऊपर कुछ से 70 रुपीज. तो ऐसा टोटल मटेरियल लेबर का मिलके इट विल बी अबाउट 96,000, 93,000 सॉरी, 93,683, ये टोटल ऑफ द मटेरियल एंड लेबर. ठीक है, अब मटेरियल में पानी रह गया है, देयरफॉर एडेड 1.5% फॉर द वाटर चार्जेस, 1.5% ऑफ दैट 530 रुपीज, 1405 रुपए. कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट 10%, that is 9368.3. So the total of all this 93,683 plus water charges 1405.2, then carpet contractors profit 9368.3. So total is 1,04,456. This is the total cost or the kharcha required for 10 cubic meter of concrete. Okay, are you getting me? 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट करने के लिए इतना खर्चा आ रहा है, 1,00,000 रुपए, 4,04,456. तो हमें रेट निकालना है 1 क्यूबिक मीटर के लिए, सो डिवाइडेड बाय 10, सो इट इज 10,446 रुपीज पर क्यूबिक मीटर ऑफ द कंक्रीट. ठीक है, यानी हम दिस रेट वी कैन टेक इनटू आवर एस्टिमेट. हम जो एस्टिमेट बनाते हैं, एस्टिमेट में रेट का जो कॉलम रहता है, वो रेट में हम ये रेट ले सकते हैं, और कंक्रीट की जो क्वांटिटी है वह हम ये स्लैब के क्वांटिटी के हिसाब से वर्कआउट करके, कंक्रीट की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट विल गिव यू द टोटल कॉस्ट ऑफ द RCC work concrete for 1 to 4. So in this way we find out the RCC work beam or slab concrete 1 to 4, which includes reinforcement and form work. ठीक है, in this way the rates are worked out. This is very simple and very practical method that is being adopted. अब जो आज के रेट एनालिसिस में क्या करते हैं वो हम देखते हैं फिर से. सो दिस इज जो हमने पिछले 3 स्लाइड में देखा, वही एक ही स्लाइड में है पूरा, ऑल द मटेरियल लेबर, देन दी फॉर द बेंडिंग बाइंडिंग ब्लैक स्मिथ, जो अभी हमने 10,446, एज आई थॉट दैट आपको जरा बारीक अक्षर में दिखेगा, तो जरा एनलार्ज करके पहले 3 स्लाइड में मैंने बताया. नाउ वी विल मूव ऑन टू अगेन द सेम रेट एनालिसिस. RCC वर्क सीमेंट कंक्रीट 1 to 4 विदाउट शटरिंग बट विथ स्टील, यानी पिछला जो रेट एनालिसिस था उसमें से यदि हम सेंटरिंग या शटरिंग की डिडक्ट कर देते हैं, तो बचा हुआ जो रेट है दैट विल बी कंक्रीट विथ रीइंफोर्समेंट विथ स्टील, देन द रेट एनालिसिस विल बी एज वी विल बी लर्निंग नाउ. यही रेट एनालिसिस को you can work out the rate for purely cement concrete, plain cement concrete 1 to 4.
विदाउट शटरिंग एंड विदाउट स्टील। इसमें से स्टील पार्ट आपने हटा दिया, तो स्टील पार्ट हटाने के बाद में आपका कंक्रीट का ही रेट आएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा सोचते जाइए, ज्यादा ये नहीं है हमें। वी आर डिस्कसिंग द थ्री रेट्स। द फर्स्ट rate is of the concrete 124. You can be able to can calculate the rate for any concrete 124, M15, 136, M7.5, 148, M5, then 1.5:3, M20, ओके, 112, M25। कौन से भी कंक्रीट के लिए ये एक बेसिक मेथड से यू कैन वर्कआउट। So we have what we have seen. We have seen earlier the RCC, that is with reinforcement, formwork, and steel, etc. This rate is without formwork. You can also find out third rate, which is without formwork and without steel, only excluding steel. You can see now. प्रोसेस वही है। फिर से मटेरियल स्टोन एग्रीगेट 8.8, सीमेंट 2.2, सैंड 4.4, उसके जो भी रेट है और उसकी कॉस्ट। उसके बाद में रीइंफोर्समेंट जैसे निकाला 0.02% और 2% ऑफ द कंक्रीट। पहले हमने 1% लिया था, यहाँ पे 2% है। जब भी 7.85 क्विंटल आया था, नाउ इट इज डबल, दैट इज 15.7 क्विंटल। रेट इज दैट, है ना। तो कुछ नहीं, हमने सिर्फ स्टील थोड़ा बढ़ाया है। पहले 1% कंसिडर किया था, अभी 2% किया है। बाकी स्टील का कॉस्ट निकाला, बाइंडिंग वायर, लेबर। अभी यहाँ पे फॉर्म वर्क नहीं है, तो इसलिए फॉर्म वर्क का रेट नहीं आया ना, वो कारपेंटर का वगैरह है। सो हेड मैसन कंक्रीट बनाने के लिए वगैरह, कंक्रीट ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मैसन वगैरह फिनिशिंग के लिए हेड मैसन 0.5, मैसन 3, मजदूर और द बेलदार 12, बॉय और द वुमन कुली 20, भिस्ती 6। फिर बेंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ द स्टील बार, यहां से जो है बेंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ स्टील बार, ब्लैक स्मिथ, मजदूर, ओके, ये दो आइटम। और ऊपर से ये जो स्टील निकाला है जीरो, जो 15.7 क्विंटल, ये तीन यदि हम अगले रेट में डिलीट कर देते हैं, तो वी विल गेट द रेट फॉर द सीमेंट कंक्रीट 124 प्लेन कंक्रीट without form work, without steel. So you can work out that also. So after that, again the total is being done of last column, and then water charges are added of 1.5% of that 1,21,432, 1,821 rupees. 10% of the contractor's profit of 1,21,432, that is 12,143, है ना। देखिए कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट अच्छा रहता है 10%। क्यों आपके ध्यान में लाया कि थोड़ी मेहनत किया तो और प्रॉफिट आपका बढ़ सकता है। इफ एनीबडी ऑफ यू वांट टू pursue the contractorship, okay, then the grand total is 1,35,397. It is for the 10 cubic meters. So divided by 10 will give you the cost or the rate of the cement concrete 124 without shuttering and formwork, but with reinforcement. That rate is 13,539.72, है ना। लास्ट टाइम हमारा जो रेट आया था दैट इज 10,446, but 1% of the steel. Here 2% of the steel, but without form work. 13,539 per cubic meter. So this is one of the method you can apply for. Okay, practically also. Then we will see the rate analysis for the flooring. फ्लोरिंग करते हैं ना हम बिल्डिंग में, बहुत बार सीमेंट कंक्रीट का फ्लोरिंग करते हैं। सीमेंट कंक्रीट 124 का रेट एनालिसिस कंक्रीट का कैसे करते हैं वो अभी हमने देखा। सो अगेन फॉर द फ्लोरिंग 40 mm थिक, 4 सेंटीमीटर जाड़ा कंक्रीट फ्लोरिंग का, ठीक है, 40 mm थिक, 4 सेंटीमीटर फ्लोरिंग कंक्रीट, है ना। तो 4 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो 1 क्यूबिक मीटर का लिए कितना एरिया लगाएगा वो आप निकालिए, ठीक है। 4 सेंटीमीटर थिकनेस में 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना एरिया, 4 सेंटीमीटर इज 0.04 मीटर्स,
multiplied by area. So you will find the area, 1 cubic meter. For that area, if you can find out the various quantities of the cement, sand, aggregate, etc. And you have to convert that into 1 square meter. है, ठीक है। यहाँ पे रेट हमने 100 स्क्वायर मीटर के लिए निकाला है। 100 स्क्वायर मीटर के लिए रेट निकाल रहे, बिकॉज फॉर द फ्लोरिंग द पेमेंट इज नॉट डन इन क्यूबिक मीटर। ओके, सीमेंट कंक्रीट 1 to 4 है, 40 mm थिक फ्लोरिंग है, द रेट्स आर पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इन स्क्वायर मीटर। इसलिए हमने क्या किया कि 100 स्क्वायर मीटर का रेट निकाला। नाउ फॉर 100 स्क्वायर मीटर हाउ मच विल बी द इन क्यूबिक मीटर क्वांटिटी? 100 square meter is the area multiplied by thickness of the concrete, that is 40 millimeter, that is 4 centimeter, that is 4 divided by 100, that is 0.04 meter. So 100 square meter multiplied by 0.04 meter, that is thickness, is equal to, that is almost, I think, 100 multiplied by 4 upon 100, 400. So 4 cubic meter will be the quantity. 4 cubic meter of concrete for 100 square meter area. 4 cubic meter. ओके, सो 4 क्यूबिक मीटर के लिए जो भी आपको एग्रीगेट लगेगा, सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे करना है ना। 10 क्यूबिक मीटर के लिए कितना वो हमने निकाला था पहले के रेट एनालिसिस में। नाउ फॉर द 4 cubic meter, and accordingly this material is written. Are you getting me? I will again repeat that the thickness of the flooring is 40 mm, that is 4 centimeters, that is 0.04 meters. So the volume of the concrete for 100 square meter flooring is area multiplied by thickness. Area is 100 square meter, thickness is 4 centimeter, that is 0.04 meters. So 100 multiplied by 0.04, that is 4 cubic meter. ठीक है। So 4 cubic meter concrete is required for 100 square meter of the flooring with 4 centimeter or 40 millimeters of the thickness. आर यू गेटिंग मी? फ्लोरिंग जो नीचे में रहता है, फ्लोरिंग हमारे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में कंक्रीट का जो फ्लोरिंग रहता है, कभी वो मार्बल का भी रहता है, कभी वो टाइल्स का भी रहता है। तो अभी हम कंक्रीट का रेट एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो 4 क्यूबिक मीटर के लिए एग्रीगेट कितना लगता है? 20 mm, 3.76 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 1 to 4 है। सीमेंट है 10 क्यूबिक मीटर के लिए 66 बैग्स लगता है। तो 4 क्यूबिक मीटर्स के लिए कितना? तो 0.94 क्यूबिक मीटर। इसका 2 पार्ट्स, दैट इज 1 to 4 है, इसलिए 1.88 क्यूबिक मीटर इज सैंड, रो नंबर 3 इन मटेरियल। सीमेंट जो 0.94 क्यूबिक मीटर है, इसका 4 टाइम्स 1 to 4 है एग्रीगेट। फर्स्ट लाइन स्टोन और एग्रीगेट 20 mm, 3.76 cubic meter. So in this way, and some cement is also required for the finishing of the surface, है ना। सरफेस कंक्रीट होने के बाद में उसके ऊपर सीमेंट छिड़क के उसको अच्छा चिकना चोपड़ा करते हैं, फिनिशिंग बोलते हैं हम उसको। तो उसको भी 0.2 क्यूबिक मीटर सीमेंट ज्यादा का लगेगा करके हमने एज्यूम किया है यहाँ पे। सो देयरफॉर the rates are there in column number 4 of each material: stone, cement, sand, and again cement. For stone, all the rates are for per cubic meter. So rates, that is column number 4 multiplied by column number 2, will give you the cost, that is column number 6 for the material. For this concrete of 4 cubic meter, labors कितने लगेंगे? हेड मैसन रिक्वायर्ड इज 0.75 नंबर, है ना। यानी पूरा एक मैसन का दिन भर का काम नहीं लगेगा, उसका 3/4 और 75%, सो 0.75। उस द रेट्स ऑफ ऑल द लेबर्स आर ओल्ड रेट्स, सो 350 पर डे फॉर द हेड मैसन। उसके अंडर 10 मैसन और लगेंगे, है ना। लेइंग है, कॉम्पैक्शन है, उसका फिनिशिंग है, तो मैसन लगते हैं। तो 10 मैसन्स
बिलो दिस 0.75 मैसन, हेड मैसन के नीचे, their rates are 300. then below this mason some मजदूर are required, मटेरियल लाना है, ट्रॉली से स्प्रेड करना है, ट्रांसपोर्टेशन, स्प्रेडिंग एक्सेट्रा, मजदूर are required, 5 मजदूर. for helping these मजदूर some woman कूली required, गिट्टी लाना है, रेती है, मिक्सर में डालना है, पानी देना है वगैरह, बिस्ती रिक्वायर्ड, मिक्सर ऑपरेटर्स एक्सेट्रा. so all this labor part is here. एंड देन द सम सन्ड्रीज T&P, फॉर्म वर्क है, कुछ आपको शॉवेल्स जिसको पावड़े बोलते हैं वो लगते हैं, सम स्पून्स एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड, सम चीजल्स आर रिक्वायर्ड. ओके, सो दोज आर टूल्स एंड प्लांट्स आर रिक्वायर्ड, सन्ड्रीज, जो 300 रुपीज हमने ऐड किया इसमें. सो टोटल इज 24,371.5 for 100 square meters, or you can say for 4 cubic meter. ठीक है. So this is for the material. Then again water charges 1.5% added. Again this water is for the preparation of the concrete and also for the curing. For curing also we need the water, so water charges 1.5% of 24,371. and then the contractors profit 10%, 24,337.15, and summation of all this is the rate or the cost for 100 square meter, 27,174.2, again divided by 10, the rate is 271 rupees 74 paisa per square meter. ठीक है. इस in this way the flooring rate is worked out. Again the same process is there. Again for 1 to 4 cement concrete flooring, the same thing is being repeated here. Again 1 to 4 concrete के लिए जो हमने पहले देखा है, 1 to 4 concrete के लिए for 10 cubic meter, this is purely concrete without reinforcement and without any steel. ठीक है. इसमें ओनली स्टोन 40 mm के लिए, 40 mm 40 mm एग्रीगेट के लिए. सो स्टोन, सैंड, सीमेंट हमने देखा था 2.2 cubic meter, 66 bags. So in this way the material, labor, all these are added, and then without reinforcement, so no reinforcement, and all this has been found out. Material is added, water charges, contractors profit. This is for the 10 cubic meter, so per cubic meter it is 3,202 रुपीज पर क्यूबिक मीटर हो सकता है. ये ऑल दीज आर द ओल्ड मटेरियल एज वेल एज द लेबर रेट. इतने कम रेट में कोई काम नहीं करता है, बट दीज आर ऑल द कैलकुलेशंस विच यू शुड अंडरस्टैंड. आप लोगों को समझने के लिए. ये आप कॉलम नंबर 3 जो है यू कैन रिवाइज इट. ऑन द क्वांट्ररी आई रिक्वेस्ट यू, मैं आप सबको बोलता हूं कि ये जितने भी रेट एनालिसिस हमने देखे हैं इसका एक तो अपने नोटबुक में कैलकुलेट कीजिए. आज के रेट मुझे ढूंढ के लाइए, फोन कीजिए कहीं से, मटेरियल रेट आपको मालूम है, एंड यू डू रेट एनालिसिस ऑन योर ओन एंड सबमिट इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप. जितने लोग भी है आज 15-16, विदाउट टेकिंग एनी लोड और बर्डन, डू इट ऑन योर ओन, तो ही आपको समझेगा. फॉर रेफरेंस यू कैन रेफर द नोट्स, उसमें भी ये सभी दिया है, और यू कैन रेफर द वीडियो लेक्चर ऑल्सो. So this is all we have seen up till now, the various types of the concretes, floorings, again 40 mm thick flooring. Some now I think you all must be watching, आपके screen के ऊपर visible है ऐसा मैं समझता हूँ. I am trying to show you the actual rate analysis nowadays. ये जो अभी मैंने आपको इरिगेशन का CSR दिया, वो इरिगेशन के सीएसआर के रेट एनालिसिस का पार्ट है ना. हम कुछ तो भी 2-3 आइटम के ऐसे प्रैक्टिकली हाउ दी प्रोसेस अडॉप्टेड नाउअडेज, ओके, इन द रेट एनालिसिस. दिस इज ए practical thing we must know. We will see how the rates arrived for the excavation. We will see for the concrete also. जो भी 2-3 आइटम के हम देखते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे निकाला है उन्होंने.
I request you all to please go through the wording of the items of work. जैसे ये पहला है excavation in all kinds of soil. Soil word is very important, क्योंकि जब स्ट्राटा क्लासिफिकेशन होता है, आपने जियोलॉजी में पढ़ा है कि अपर स्ट्राटा इज जनरली सॉइल विच इज वेरी इजी टू एक्सकवेट. उसके बाद में मुरुम रहता है, हार्ड मुरुम. जनरली जो स्ट्राटा रहता है जमीन के नीचे में, वो पहले सॉइल रहता है, फिर मुरुम रहता है, फिर उसके नीचे सॉफ्ट रॉक रहता है जो मैन्युअली भी निकलता है, जिसको शॉवेल या टिकास से या इससे निकलता है. फिर उसके नीचे हार्ड रॉक रहता है. फॉर दैट वी नीड स्पेशल ब्लास्टिंग एक्सेट्रा. So this is generally the classification of the strata which is needed to be excavated during execution of the our work. कोई भी बिल्डिंग का फाउंडेशन करना है, ब्रिज का फाउंडेशन है, डैम का फाउंडेशन है, or any type of the work, excavation is part and parcel of our work. So that is the item of work. Maybe excavation in soil, maybe excavation in hard murum, maybe excavation in soft rock, maybe excavation in hard rock. है ना. खोदाई करते वक्त हमें क्या क्या खर्चा आता है, उस हिसाब से हम रेट निकालते हैं. ठीक है. सो नाउ आई विल रीड आउट द आइटम अगेन. Excavation in all kind of the soil. I expect that this is visible on your screen. I tried to enlarge it. Excavation in all kinds of the soil, including boulders, up to 0.6 मीटर डायमीटर. है ना. पत्थर बोल्डर है 0.6 मीटर डायमीटर, 60 सेंटीमीटर साइज के. फॉर कैनाल, कैनाल के लिए, क्योंकि ये वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का CSR है. फॉर कैनाल, सीटिंग ऑफ एम्बैंकमेंट. है ना. एम्बैंकमेंट यानी जो माती काम रहता है, उसके नीचे का जो पार्ट रहता है उसको छील के निकालते हैं, स्ट्रिपिंग करके बोलते हैं. तो उसको सीटिंग यानी बैठक, सीटिंग ऑफ एम्बैंकमेंट, फिल्टर ड्रेन्स, कैच वाटर ड्रेन्स, एंड प्लेसिंग द एक्सकवेटेड स्टफ. खुदाई वाला जो मटेरियल है वो कहीं तो भी बाजू में डालना है, एक्सकवेटेड स्टफ नीटली इन ए डंप एरिया और फॉर फॉर्मेशन ऑफ द सर्विस रोड एम्बैंकमेंट. ठीक है. कहीं तो भी ये मटेरियल यूज करना है, इंक्लूडिंग. अब इसमें क्या क्या आ गया देखो. लीगल मैटर आ सकता है, इसलिए कितना डिटेल में इसमें लिखते हैं आप ख्याल दीजिए. इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ऑल मटेरियल. जो भी मटेरियल लगता है इसमें खुदाई के लिए, वो मशीनरी, लेबर, ड्रेसिंग द बेड एंड साइड्स टू रिक्वायर्ड लेवल एंड प्रोफाइल एक्सेट्रा, कंप्लीट विथ लीड अप टू 1 किलोमीटर. यानी 1 किलोमीटर तक के ये मटेरियल आपको ले जाना है, उसके पैसे भी इसमें ऐड किए हैं. ट्रांसपोर्टेशन, ऑल लिफ्ट्स यानी समझो 1.5 मीटर की ऊंचाई की उठा के लाना रहता है. ऑल लिफ्ट्स एज डायरेक्टेड. और मैंने आपको बोला था कि स्पेसिफिकेशन के यूनिट जब पढ़ा है तो उसमें स्पेसिफिकेशंस एज पर सेक्शन EX करके स्पेसिफिकेशन का होगा. डिटेल स्पेसिफिकेशन जो है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, उसमें खोदाई कैसे करना चाहिए वो डिटेल सब दिए रहते हैं. सो सेक्शन एक्सकवेशन का जो है, सेक्शन एक्सकवेशन को रेफर कीजिए, उसमें सब और डिटेल दिए है. बट दीज आर ऑल द डिटेल्स ऑफ द आइटम. नाउ हाउ द रेट्स आर देयर. एक्सकवेटर आजकल खोदाई के लिए लेबर से कम करते हैं, हम मशीनरी यूज करते हैं. एक्सकवेटर है ना, JCB वगैरह आप साइट पे देखते हैं, JCB या पोकलेन करके आते हैं एक्सकवेटर मशीनरीज. इसकी जो बकेट रहती है ऐसी जो खोदते हैं, उसकी कैपेसिटी 0.9 क्यूबिक मीटर की रहती है. ख्याल में रखिए, जनरल नॉलेज. सो द बकेट कैपेसिटी इज 0.9 क्यूबिक मीटर. जनरली वो जब खोदता है तो वो पूरे का पूरा 0.9 नहीं निकलता है, 0.85 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी. हीप्ड कंडीशन कैपेसिटी इज 1 क्यूबिक मीटर. खोदाई से जब डालता है तो लूज में वो 1 क्यूबिक मीटर होता है. सो इट इज अबाउट 1.85 18 टाइम्स ऑफ 1 बकेट. जस्ट बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम. सो द टोटल क्वांटिटी 1 by 1 बकेट इज 1.06 क्यूबिक मीटर. कैपेसिटी ऑफ द टिपर, जो ये खोदाई के बाद में वो ट्रक में डालता है जिसको टिपर बोलते हैं, ये भी ख्याल में रखिए. एक टिपर की कैपेसिटी 6 क्यूबिक मीटर रहती है. थोड़ा जनरल नॉलेज हमारा फिर से. लीड फॉर डिस्पोजल ऑफ एक्सकवेटेड सॉइल
हमने 1 किलोमीटर तक के लीड कंसिडर किया है. सो स्पीड ऑफ द ट्रक और द टिपर इज 12 किलोमीटर पर आवर. देखो कितने डिटेल में रेट एनालिसिस करते हैं. स्पीड फॉर एमटी इज 15. टर्निंग एंड ओवर एंड अनलोडिंग टाइम 2 minutes. Excavator digging loading time per bucket is 20 seconds. Then quantity of excavation. In situ quantity is 25% of the bucket. 1.06 का 25% और 1.2.848 क्यूबिक मीटर. इन situ क्वांटिटी फिर से इसकी एक ट्रक के लिए 6 क्यूबिक मीटर के लिए कितनी. सो दैट इज 4.8 क्यूबिक मीटर एक्चुअली बकेट से ट्रक में डालते हैं, लेकिन वो लूज जब गिरता है तो उसका 6 क्यूबिक मीटर होता है. ऐसा कहने का मतलब है शॉर्ट में, है ना. बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे हम, लेकिन ये क्वांटिटी अभी क्या निकाला है एक बकेट के लिए, एक ट्रक के लिए. ओके, मींस 6 क्यूबिक मीटर विच इज एक्चुअली कॉम्पैक्ट क्वांटिटी इज 4.8 क्यूबिक मीटर. Number of the buckets per load 4.8 divided by 0.848 प्लस 6 बकेट, 6 बकेट लगेगी वो पोकलेन की या वो एक्सकवेटर की. सो ऑल द करेक्टेड क्वांटिटी, साइकिल टाइम हॉलेज वगैरह हम पढ़े हैं. सो ऑल दिस इज बीइंग वर्कड आउट. देयर टाइमिंग इज फाउंड आउट फॉर वन साइकिल. एक ट्रक भरने के लिए वो पोकलेन या जेसीबी जो है उसका कितना समय लगता है. ठीक है, दिस इज बीइंग वर्कड आउट देयर. टाइम इज वर्कड आउट. just you have learned some, you might have learned something in your CPM or construction management subject about all these equipments. So this is all the time and the quantity required, time required for one 5.088 cubic meter excavation, that is in one tipper is 13.5 minutes. So number of the tippers to match corrected cycle time, etc. All that has been worked out. Their output is worked out. Total quantity is 55.53 is worked out. And the mazdoor, etc. How much deploy mazdoor from for trimming, disposing soil. है ना, तो वो मजदूर निकाले हैं. डिप्लॉय मजदूर फॉर जनरली 5 क्यूबिक मीटर पर डे एक मजदूर काम करता है, तो 11 मजदूर लगेंगे. लाइट मजदूर जो हमने देखे थे, यानी बेलदार एंड द वुमन और द लाइट मजदूर यू कैन से, दे विल आल्सो रिक्वायर्ड 11 नंबर्स. सो मटेरियल सॉइल जो है वो 1110.57 क्यूबिक मीटर एंड मजदूर आर 22. सो एक्सकवेटर यूनिट ए क्वांटिटी 8 क्यूबिक मीटर, उसका जो रेट है एक्सकवेटर का रेट पर आवर इज 1767. सो देयरफॉर 1767 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये एक्सकवेटर का भाड़ा हो गया, खर्चा 14,136. टिपर का जो है 56 मिनट्स उसको लगते हैं, तो वो 10,039 per minute. So multiplied by 56, or for 8 hours you can say 58,100. So total for the excavator and tipper is 72,320. मजदूर के जो रेट है टोटल 22 मजदूर 11 551. आज का रेट जो है 551 रुपए है. मल्टीप्लाइड बाय 22, 12,122. सो लेबर इज 12,000. सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज, अब इसमें खोदाई का और कोई मटेरियल नहीं, हम मशीनरी यूज कर रहे हैं. सो हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, भाड़े के जो चार्जेस है 72,320. कॉस्ट ऑफ लेबर 12,122. टोटल इज 84,442. 1% लेबर एमिनिटीज 84,442. ये वो जो 6 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है उसके लिए हमने निकाला. ठीक है, या 4.8 जो कॉम्पैक्टेड 4.8 है, लेकिन टिप्पर में 6 क्यूबिक मीटर जाता है. सो 84,000. लेबर एमिनिटीज आजकल उसके लिए साइट के ऊपर में लेबर के लिए रहने की जगह, पानी के पीने की जगह, उनके बच्चों को खेलने की जगह, तो उसको 1% फॉर द लेबर एमिनिटीज
1% ऑफ 84,442, ठीक है, टोटल आ गया 85,286। 20% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस, है ना। ये प्रैक्टिकली है भला, आज का सीएसआर है ये हमने जो पिछले एग्जाम्पल देखा वो तो बुक से देखा, लेकिन दिस इज ऑल दैट इज बीइंग अडॉप्टेड टुडे। सो यू कैन सी दैट द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस, यानी ठेकेदार का प्रॉफिट और उसको और कुछ ओवरहेड साइड के ऊपर इंजीनियर है उनके पेमेंट है, सुपरवाइजर है, ठेकेदार का मुकादम है, साइट के ऊपर ऑफिस बनाना पड़ता है, पीने की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी रखना पड़ता है। So that has been considered as 20%. So that is 17,057. So total is 1,02,343.7. So total cost for 1110.57 cubic meters है ना, ये जो ऊपर में निकाला था रेड, टोटल इज फॉर 1110.57 क्यूबिक मीटर। मेरा कर्सर यदि आपको दिख रहा होगा तो फॉर this much cost, this much is the cost, therefore for per cubic meter 1,02,343 divided by 1110.57, that is 92.15 per cubic meter, ठीक है। So this is the way in which we can find out, or we find out the rate for excavation, ठीक है। दिस इज नॉट बीन आस्क्ड इन एग्जाम, लेकिन ये आप अपने दिमाग में रख दिया पैटर्न कि जैसा किसी का भी रेट निकालते हैं तो पहले मटेरियल, आपको मटेरियल मालूम रहना चाहिए, वो कैलकुलेट आपको करते आना चाहिए। कंक्रीट है तो जैसे हमने पढ़ा है पहले 124, 148, 136 कंक्रीट, हाउ द मटेरियल्स आर वर्कड आउट, वी हैव सीन टू मेथड्स, ठीक है। 136, 124 के लिए हमने निकाला है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ओके। वाटर भी हम वाटर सीमेंट रेशो के हिसाब से निकाल सकते हैं, आप लगे तो एक आधा करके मुझे बताइए। तो वैसे हमने रेट एनालिसिस मटेरियल पार्ट, लेबर पार्ट, टूल्स एंड प्लांट्स, सन्ड्रीज, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, वाटर चार्जेस, टोटल फॉर से 100 स्क्वायर मीटर और 10 cubic meters, and then for 1 cubic meter or 1 square meter. In this way also excavation, how practically is being done, that we have seen. Now this is the abstract of all that above. Material part, no material is required. एक्सकवेशन के लिए कोई सीमेंट, कोई गिट्टी, कोई रेती नहीं लगती है, पानी नहीं लगता। सो मटेरियल इज जीरो। मशीनरी हायर चार्जेस 34 रुपीज 84 पैसा पर क्यूबिक मीटर। पेट्रोल, ऑयल और ल्यूब्रिकेंट, जो भी बाकी जो हमारे मटेरियल लगता है वो 44 रुपए, या लेबर चार्जेस वगैरह है, मटेरियल एंड लेबर 44 रुपीज 9 पैसा, लेबर चार्जेस 13 रुपीज 22, सो टोटल इज 92.15 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ऐसा ही एक अर्थवर्क का भी है ना। बहुत अभी इसको आपको शायद फेंट दिख रहा होगा, ये फिर से बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल। एक्सकवेशन खोदाई जैसे था वैसे माती काम भी हम करते हैं। हमने एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग आपका ये जो है यूनिट नंबर 1 या यूनिट नंबर 2 में हाउ दी हार्टिंग या एम्बैंकमेंट की क्वांटिटी वर्कआउट करना पड़ा था, how to calculate the quantities to find out the embankment, banking or earthwork, है ना। we have seen that prismodel formula etc. so to execute that quantity, वो quantity वो काम करने के लिए जो माती काम या अर्थवर्क हमें करना पड़ता है उसका रेट एनालिसिस भी है। वही इरिगेशन के रेट एनालिसिस में आइटम नंबर 10 में है अर्थवर्क केस में। तो आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दैट रेट एनालिसिस, ठीक है। उसमें भी वैसा ही है कि हार्टिंग एम्बैंकमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, सिलेक्टेड, अगेन 1055.04 क्यूबिक मीटर पहला जैसा निकाला था, and again for that how much machinery is required, what are the labors required, okay, water required etc, all that has been done and the rates are being arrived for the 1 cubic meter, ठीक है। और वो रेट आया 50 रुपीज, 55, 70 रुपीज पर क्यूबिक मीटर फॉर द हार्टिंग। डैम में या एम्बैंकमेंट में हार्टिंग और केसिंग करते हैं तो उसके लिए है, ठीक है। उसका भी एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल, मशीनरी, पीओएल, पेट्रोल, ऑयल, ल्यूब्रिकेंट वगैरह, लेबर पार्ट, all that has been shown here, that is being discussed here, okay। अभी ये जो नेक्स्ट है, दिस इज रिगार्डिंग दी
concrete के लिए how the rates are worked out. We will just first we will just revise all that has been done today, and then at last, or just conclude this with item number 27. It is in the CSR. I will read out the item, then you can understand it better. Providing and laying in situ cement concrete. यहाँ पे कोई वॉल्यूमेट्रिक कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे आपको, है ना. वी हैव सीन द concrete strength or concrete grading is being done by volume and the way batching. ठीक है. और जो स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रेंथ के आपने हमने जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा है वो that strength has been shown here by the M10. So providing and laying in situ cement concrete of grade M10, वॉल्यूमेट्रिकली इसको 136 करके बोलते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे क्वांटिटी दैट इज बेस्ड ऑन ऑल द कंक्रीट मिक्स डिजाइन. M10 ऑफ ट्रैप ग्रेनाइट क्वार्टजाइट एग्रीगेट कौन सा है देखो, ग्रेडेड मेटल फॉर फाउंडेशन एंड बेडिंग विथ बैचिंग प्लांट एंड ट्रांजिट मिक्सर including placing, compacting, curing, complete with all leads and lifts as directed. And the specification section cement, concrete, है ना. इतना अच्छे से, यानी अभी आपने you all have learned concrete technology, you know about that, and now you are learning the rate analysis or the estimating costing. You have learned about the items of work, you have learned about the specifications. Specifications are nothing but the guidelines to do the good quality work. तो वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये आइटम ऑफ वर्क में हमने लिखना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्युइटी या कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसका डाउट या ऑफ बेनिफिट ये कॉन्ट्रैक्टर को जाता है. तो इसलिए वर्डिंग हम एक बार फिर से पढ़ते हैं कि प्रोवाइडिंग एंड लेइंग in situ cement concrete of grade M10, mix 10. M stands for mix, 10 stands for the characteristics compressive strength, that is 10 Newton per meter per millimeter square, or 100 kilogram per centimeter square, 10 Newton per mm square, or 100 kg per cm square. So M10, no volumetrical nominal concrete is written. M10, it is volumetrically 136, one part of the cement, 3 parts of the sand and 6 part of the aggregate. ऐसा जब proportion रहता है तो वो जनरली उसकी strength M10 आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है और आजकल ऐसा नहीं कुछ लिखते नहीं. So M10 of trap granite graded metal for foundation कहाँ पे यूज करना है, तो यह फाउंडेशन में यूज करना है. बेडिंग लेवलिंग कोर्स बोलते हैं उसको. विथ बैचिंग प्लांट, आपको बैचिंग प्लांट या आरएमसी प्लांट ही यूज करना है, मैनुअल नहीं करना है, मिक्सर नहीं करना है. एंड ट्रांजिट मिक्सर, बैचिंग प्लांट से कंक्रीट हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, ट्रांजिट मिक्सर से. इंक्लूडिंग प्लेसिंग, जगह पे प्लेस करना, कॉम्पैक्टिंग दैट इज वाइब्रेटिंग, क्यूरिंग फॉर 28 days, लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है 28 days, कंप्लीट विथ ऑल लिफ्ट्स एज डायरेक्टेड. स्पेसिफिकेशंस अंडर सेक्शन, जो स्पेसिफिकेशन का सेक्शन है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, दैट इज ऑफ द सीमेंट कंक्रीट. ठीक है. इसके जो डिटेल्स है दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर और द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस यूनिट. I am very happy